In banks, how many types of accounts are there? Sir, basically there are two type of account, savings and current account. No, sorry, savings and. कोई अखबार पढ़ते हैं आप? यस सर. कौन सा अखबार पढ़ते हैं? सर हिंदू. तो आज के हिंदू में यस सेकंड टॉप लाइन क्या है फर्स्ट पेज पे? वन नेशन वन इलेक्शन का चल रहा है आजकल, आपने सुना होगा बहुत. तो इसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है. यस सर. किसको रिपोर्ट सबमिट हुई है? वो गवर्नमेंट को हुई है या प्रेसिडेंट को हुई है? सर प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट को हुई है. कौन था कमेटी का हेड? वहाँ पे जैसे मिडिल में था तो उसमें क्या कॉन्फिडेंस कम लग रहा था, मतलब कैसा था? सर एक्चुअली ये वाला थोड़ा दिक्कत कर रहा है. एक सर एक क्वेश्चन ये है. May I come in, sir? Yes, please come. Have a seat, please. Welcome, Yashwant. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. State Uttar Pradesh, which place you belong to? Sir, Jalon district. Can you tell me something about the Western UP and Jalon? You tell me. What Yes, is the famous for that one? सर स्पेशली जालौन में एक सिटी है कालपी, जहाँ पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे तात्या टोपे जी, उन्होंने वहाँ से 1857 की लड़ाई लड़ी है. और वहीं से रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी पे जब हमला हुआ था छोड़ के कालपी ही गई थी. और जालौन में बहुत सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे किले वगैरह होते हैं, अब वो हैं. और एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अच्छा है वहाँ पे स्पेशली जैसे मटर है, वीट है, पी एंड ग्राम्स फसल जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं. एंड दैट इज ऑल. Can you tell me something about your family background? Yes sir, my father is a farmer and he is living in my village with grandparents, and my mother is homemaker, and that's all. Any other brother, sister? Yes sir, my brother is my elder brother is working in private coaching, resonance for he's teaching for NEET student preparing. So that is all. So your basic subject is the BTech mechanical. Yes. Why you prefer this banking sector? Sir, I have 2 years of experience. After the graduation, I worked in Subag Digital System Solution Private Limited for 2 years, and that was quite good in organization. But I could not see my future growth, so I choose to switch for government, especially banking and insurance. So that is why I am preparing. Okay, you can pass it. Now you're going for insurance sector. Yes sir. Whenever a customer is taking a policy Yes sir. from an insurance company, there may be a contract between the company and the party who is taking the insurance. Naturally, everything is based on the Yes. contract only. Yes sir. Do you know what is indemnity fee? Yes sir. What is the indemnity fee? Sir, indemnity is something that you will be compensate whatever your loss is. Further, explain little bit further. So, okay, I sir. want So, something for extra example- from you. Okay, sir. For example, if your loss is up to 10,000 and your policy is 1 lakh, you will be compensated only 10,000, not 1 lakh. So this is indemnity. That is a proportionate clause. I understand. I want to know, whenever I am suppose one customer is taking a policy. Yes, sir. I have taken policy for this office. Yes, sir. I have created a relationship with you. Yes, sir. Yes, What sir. relationship, what type of relationship it will be created between the company and myself? When you are selling the product, Yes, sir. insurance, what is the relation will be created? Everything is on the basis of contract, na? Yes, sir. Yes, sir. You are going to sign, I am going to sign Yes, sir, some yes, sir. document, then
after signing a document, I am giving a premium, then there is a contract between you and me. Yes, sir. You are an insurance company, I am a client of you. Yes, sir. One relation may be created. Sir, I don't know. That is identify. I want to know, no? Identify. Okay. You are going to identify me if any losses happen. Yes, अगर मेरे को कोई लॉस होता है, मेरी वजह से होता है या दूसरे की वजह से होता है, Yes. तो मेरे को कंपनसेट करोगे. वही sir, आप yes, sir, वही yes, sir. एग्रीमेंट हो रहा है ना Yes, yes, हमारे sir, में. yes, sir, yes, sir. तो वही आइडेंटिफाई, क्योंकि रिलेशनशिप तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है किसी ना किसी लॉ के ऊपर ही चलेगा. Yes, sir. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है वो इसमें यूज होता है. Okay, sir. ठीक है. तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको कैसे लगता है कि इंश्योरेंस के अंदर हेल्पफुल रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी को हेल्पफुल रहेगा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग? Sir, actually, in the mechanical engineering background, there are so many insurance, for example, vehicle and industry. There are so many machineries which work on the mechanical department. So, if I selected, so my job will be to analyze the and assessment the risk over the machineries and make the appropriate report on the loss purpose. And then give to the मेरे मतलब आपका कहने का मतलब है कोई एक्सीडेंट हो गया, yes sir. तो आप कैसे असेस करोगे उसको? एक्सीडेंट तो हो गया, वो तो जल गया, वो तो राख है जहाँ पे आप Sir, गए. I will see that it is natural or by intention, मतलब कोई जबरदस्ती करना चाहता है या फिर वो एक्सीडेंटली हुआ है, डिपेंड करता है ना. वैसे ही जैसे कोई मशीन है तो कैसे खराब हुई है, उस पर क्या रिस्क है, हम उस हिसाब से प्रीमियम बनाते हैं. अंडर राइटिंग होती है, जैसे कोई भी एक मशीन है उस पर कितनी चांसेस है कि वो खराब हो जाती है, तो उस हिसाब से उस पर प्रीमियम आप बढ़ेगा. प्रीमियम फिक्स करोगे. Yes, sir, yes, नहीं वो ठीक है, आप प्रीमियम, आपका रोल एक हो गया, आपने प्रीमियम फिक्स किया. Yes, sir. सेकंड कोई क्लेम सेटल करना है, उसके लिए भी आपका रोल आएगा. Yes, sir. आपको विजिट करना Yes, sir, है, बिल्कुल. आपको डिसाइड करना है Yes, sir. कि क्लेम एक्स अमाउंट का है, वाई अमाउंट का है, जेड अमाउंट का. वो कैसे डिसाइड करेंगे आप? क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंश्योरेंस कंपनी आपको इसीलिए हायर कर रही है क्योंकि आपके पास स्पेशल एक्सपीरियंस है Yes, पर्टिकुलर फील्ड का. यस सर. तो कैसे असेस करेंगे? सर जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल है, अगर वहाँ पे उसका जो भी नुकसान हुआ है उससे पहले का जो भी होगा वो डेटा देगा हमको कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ था, और उसके बाद देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ इसमें ये चेंज होगा, तो उस हिसाब से मार्केट के हिसाब से वो पूरा बनेगा कि लिटरेचर पूरा कि हाँ इतना इतना नुकसान, उस हिसाब से वो कंपेंसेट कर दिया जाएगा. ठीक है. मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि आप पहुंचे, मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए लोन लिया, आग लग गई, यस सर. राख है, यस सर. आप विजिट कर रहे हैं, मतलब वो पूरी राख दिखा रहे हैं, ये राख है, ये सारी मेरी मशीनरी तो जल सर गई. जितने का पॉलिसी उतना ही मिलेगा. नहीं वो उतनी मशीनें थी नहीं थी, आपको क्या, वो तो राख दिख रही है आपको. सर तो पता ना. नो इश्यू, डू वेल सर. यशवंत, मिस्टर यशवंत हैं. सर, yes, sir. तो आप इंश्योरेंस में जाना चाहते हैं. बताइए मुझे, इंश्योरेंस के अंदर एक चीज़ होती है एवरेज क्लॉज, सर सुना है? नहीं सर. आपने बताया अभी जो शुरू में हमने एग्जांपल दिया था एवरेज क्लॉज ही है कि अगर उतना ही प्रपोर्शन में जो क्लेम बैंक इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है वो एवरेज क्लॉज ही है. हमने एग्जांपल में क्लियर किया था. टर्म की वजह से. अच्छा. दूसरा बताइए, जैसे आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर इतने सारे प्लेयर हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जनरल इंश्योरेंस में, लाइफ में भी, मेडिकल में भी. तो आपकी यूएसपी क्या होगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए? अगर आपको सेलेक्ट किया जाए तो आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, मतलब कैसे कंपटीशन में अपने आप को नंबर 1 पे पोजीशनिंग करेंगे आप? सर जैसे सबसे पहले तो एक काम होगा कि जो मार्केट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फॉर एग्जांपल अभी अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस को ले लिया जाए तो आजकल सब लोग कैशलेस की तरफ जाना चाहते हैं. उसका रीज़न ये है कि किसी के पॉकेट में इतना पैसा नहीं है कि वो एक बार में इन्वेस्ट कर सके. तो मैं चाहूँगा कि उनको ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि वो उनके पास पहले से पैसा हो और वो उसको दे सकें. और फॉर एग्जांपल अभी एक सबसे बड़ी जो समस्या चलती है कि क्लेम लेट आता है, तो उसको हम इन्हेंस करेंगे, डिजिटलाइजेशन के थ्रू इन्हेंस करेंगे. या फिर जैसे अभी एक और दिक्कत रहती है कि आप जो हॉस्पिटल, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जिस हॉस्पिटल में बोलती है उसमें ही आपको इलाज करवाना पड़ेगा. तो मैं चाहूँगा कि उनके नियर बाई लोकल में जो हॉस्पिटल है उन पर भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके. तो ये सारी फैसिलिटीज़ उनको देनी पड़ेगी, तो दे विल अट्रैक्ट. कोई अखबार पढ़ते हैं आप? यस सर. कौन सा अखबार पढ़ते हैं? सर हिंदू पढ़ते हैं? या जो बहुत बढ़िया अखबार पढ़ते हैं. तो आज के हिंदू में यस सेकंड टॉप लाइन क्या है फर्स्ट पेज पे? सर. आज नहीं पढ़ा. अच्छा. वन नेशन वन इलेक्शन का चल रहा है आजकल, आपने सुना होगा बहुत. तो इसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है. यस सर. किसको रिपोर्ट सबमिट हुई है? वो गवर्नमेंट को हुई है या प्रेसिडेंट को हुई है? सर प्रेसिडेंट को.
प्रेसिडेंट को ही है। कौन था कमेटी का हेड? चलो कोई ओके। तो यशवंत, आप ग्रेजुएशन आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। मुझे ये बताओ, एसआई इंजन और सीआई इंजन में क्या फ़र्क होता है? सर एसआई इंजन, हाँ सर एसआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, और सॉरी एसआई इंजन होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, एंड सीआई होता है कंप्रेशन इंजन इग्निशन इंजन। सीआई इंजन बेसिकली डीजल इंजन होते हैं, और एसआई इंजन पेट्रोल इंजन होते हैं, जिसमें एक स्पार्क प्लग होता है, तो उसके थ्रू इग्नाइट होता है। फ्यूल जो कंबशन में बर्न होता है वो स्पार्क प्लग के थ्रू बर्न होता है। और जो डीजल इंजन होते हैं, जो सीआई इंजन होते हैं, उनमें जब हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन के थ्रू ही वो इतना हॉट हो जाती है, जो अंदर का मिक्सचर होता है, तो ऑटोमेटिकली वो ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, आपने एक टर्म सुना होगा यस सर। इंजन में, एफिशिएंसी। यस सर। क्या होती है एफिशिएंसी? सर एफिशिएंसी, जैसे हम जितना एनर्जी उसको दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जितना फ्यूल हम दे रहे हैं उसको, तो उसकी एक टोटल एनर्जी होती है, तो उसके बाद वो कितना हमको आउटपुट में एनर्जी दे रहा है, तो वो डिफरेंस वो इनपुट हम कैसे देते हैं इंजन्स में? सर एज अ फ्यूल। फ्यूल तो कॉमन हो गया, डीजल हो गया, Yes, sir. पेट्रोल। हम इनपुट कैसे देंगे? उसका यूज़ करना है। यस सर। तो आपने टर्म सुना है स्ट्रोक्स? यस सर। कितने वो स्ट्रोक्स होते हैं डीजल इंजन और कंप्रेशन इंजन? सर 4 होते हैं अभी दोनों। दोनों पहले में? से 2 स्ट्रोक के आते थे, अभी 4 स्ट्रोक के हैं। क्या होता है, मतलब क्या होता है 4 स्ट्रोक का? सर ऐसा होता है कि जैसे 2 स्ट्रोक में हम जब 2 स्ट्रोक चलते हैं तो हमें एक साइकिल मिल जाता है, मतलब एक पूरा 360 डिग्री का रोटेशन मिल जाता है। लेकिन आजकल जो है 4 स्ट्रोक के इंजन है, तो उनमें 4 बार जब पिस्टन मूव करेगी तब एक बार हमको 360 डिग्री का एंगल मिलेगा हमको, मतलब एक मूवमेंट मिलेगा। तो ये थोड़े इफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक। बट 2 स्ट्रोक इंजन सर थोड़े पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनमें नहीं, जैसे आपने बोला कि 2 स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। यस सर। इसमें 4 स्ट्रोक में हो रही है, तो इनपुट तो इसमें ज़्यादा हुआ, तो इसकी एफिशिएंसी तो नहीं कम सर, फ्यूल एक बार में ही जाता है ना। अच्छा। एक बार जब फ्यूल देंगे तो वो 4 स्ट्रोक करेगा कंप्लीट, और उसमें एक बार उसको पावर मिलेगी। और यही 2 स्ट्रोक में जब हम एक बार फ्यूल देंगे तो 2 स्ट्रोक चलेंगे, और 360 डिग्री का हमें रोटेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। अब ये बताइए, थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉज हैं? सर 3 बेसिकली 3 है। कौन कौन से? सर एक तो 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। क्या है 0th लॉ? क्या है? सर 0th लॉ कहता है कि इफ 2 बॉडीज आर इक्विलिब्रियम इन टेम्परेचर in each other with each other, and they separately are in equilibrium with other body, then they all 3 are in equilibrium. For example सर, जैसे एक बॉडी ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, और जो सी बॉडी है वो भी बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो जो ए और सी है वो भी इक्विलिब्रियम में होगी। वो कैसे होंगे इक्विलिब्रियम में? सर बेसिकली तीनों का टेम्परेचर सेम ही है, तो नहीं, आपने बोला ना कि ए और बी का टेम्परेचर सेम है। हाँ, सी का टेम्परेचर ए या बी के बराबर कैसे होगा? क्योंकि सर बी का सी से मैच कर रहा है और बी का ए से भी मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है? सर वही तो कोई लॉ है। मीडियम होगा ना। सर यहाँ पे एक्चुअली हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, हाँ तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा? कुछ कांटेक्ट में होना चाहिए। सर एक्चुअली इसका यूज़ थर्मोमीटर बनाने के लिए होता है, कि हम इस डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक थर्मोमीटर लिया, सर से मैच किया, कैसे मैच किया? उनको कांटेक्ट। हाँ, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से तो मैच कराना, आपस में तीनों को मैच कराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपस में तीनों को अच्छा, फिजिकली कांटेक्ट नहीं चाहिए। हीट ट्रांसफर के कितने मीडियम्स होते हैं? सर 3, कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अच्छा, Yes. कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? सर कंडक्शन में सर जो हीट ट्रांसफर होता है वो सॉलिड के थ्रू होता है, यानी सॉलिड के थ्रू होता है, एंड जो हीट ट्रांसफर होता है वो चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक कोई है। बात नहीं, ठीक है, कोई बात। बेसिकली आपने जो इतना ज़्यादा क्वेश्चन उस पर पूछा गया है ना, ये आपने इंश्योरेंस कर लिया है, तीनों अलग अलग डिफरेंट हो गए, बैंकिंग, इंश्योरेंस Yes, sir. और मैकेनिकल। यस सर, दैट इज द यू हैव वेरी मच स्कोप टू आस्क द क्वेश्चन। यस सर, दैट इज अगर बैंकिंग होता है तो बहुत कंफर्टेबल होते, इसीलिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है अपने सब्जेक्ट में भी। यस और कोरिलेशन विद द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, हाउ यू जस्टिफाई दैट योर अपॉइंटमेंट इन द बैंक फॉर सेलिंग दैट प्रोडक्ट इज द बेनिफिशियल टू द बैंक। ये आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि हट के है आपका इंश्योरेंस। ठीक है सर।
इंश्योरेंस में अच्छा स्कोप है। अच्छा। आपके पास अच्छा मैकेनिकल का बैंक में भी रहता है। यस सर। अगर आप बैंकिंग में भी अप्लाई करेंगे, बैंक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं हम, क्योंकि पर्टिकुलर हमारे को भी इंडस्ट्री स्टडी करनी होती है। ऐसा करनी होती है ना। जहाँ हम फाइनेंस करने जाते हैं, हाउ द मशीनरी फाइनेंस होता Yes, sir, है, yes, sir. ऐसा होता है, देखा जाता है किसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, किस मशीन की क्या है, यस सर। डिप्रिसिएशन वगैरह में ये सारी चीज़ें देखी Yes, जाती है। ठीक है। ये एक चीज़ और है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग तुम्हारा साफ साफ लिखा हुआ है ना, और सेक्टर भी वही इंश्योरेंस में, ठीक है। तो कुछ जो बेसिक सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज हो गए बेसिक, से तुमने डीजल इंजन और सीआई इंजन अच्छा बताया, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है, 2 स्ट्रोक की ज़्यादा है कि 4 स्ट्रोक की ज़्यादा है, ये कुछ को ब्रश अप कर लेना कॉन्सेप्ट। तीसरी चीज़ है थ्योरी ऑफ मशीन, एक सब्जेक्ट तुमने पढ़ा होगा, यस सर। यस उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। जो सर ने पूछा था ना कि मशीन्स को कैसे, वहाँ तो राख है, तो मशीन्स का कुछ नॉलेज होना चाहिए ना कि Yes, ये sir. पार्ट है, वो पार्ट है, कुछ आइडिया होना चाहिए। तो वो सब्जेक्ट का थोड़ा कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर लेना, क्योंकि आपका रोल तो यही रहेगा, Yes, sir. असेस करना और Yes, sir. आपका इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स करना और ये कितना रिस्क। फाउंडेशन में भी मैकेनिकल उस पर ही बेस्ड वाला, फिर इंश्योरेंस में तुम Yes. करना, तो ये कुछ चीज़ों को ब्रशअप कर लेना। उनको तो इंश्योरेंस को आपके नॉलेज, आपको उनको अपना यूज देखना, आप कहाँ उनके लिए यूज कर पाएंगे। यस और जो चीज़ नहीं पता है ना, उसको मना कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। दिक्कत नहीं, यस सर। अदरवाइज आपको वहाँ ही फंस जा रहे हो आप। एक तो नहीं आता है तो ठीक है, तो मना वहाँ करो। रुक जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर दीजिए कि सर पास ऑन फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, तो बोर्ड समझ जाएगा क्या पोजीशन है। अननेसेसरी उसी में उलझाने के बजाय यस सर। यस फिर आपको ये है। और रिप्लाई देते समय थोड़ा सा फ्लो करो, आप रुक जा रहे हो कहीं, अच्छा। तो ऐसा लगता है कि आपको आ नहीं रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई आ रहा है, दिक्कत नहीं, कोई नहीं इशू आ रहा नहीं है। 100% क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछाता है, नॉलेज नहीं पूछाता। हम देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, यस आपका एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है। सर। जो चीज़ जानते हो उसको क्लैरिफाई कर देना, बिल्कुल वो क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी ज़रूरत है आप में। नॉलेज है बट हाउ टू, अब जैसे वकीलों की तरह पूछना पड़ रहा है कि ऐसे आप जानते हो सब कुछ बता दे रहे हो, लेकिन उसे वो आपको पूरा ये ना करना पड़ जाए, आप शुरू बता दिया करो, ठीक है। दैट इज रिक्वायर्ड। अपने में नोट कर लो क्या क्या चीज़ आपको क्वालिटी के लिए और चाहिए। मैं आपको बताऊं और भी, जब भी आप स्टडी करते हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो खुद से, जब जिस दिन आपके अंदर ये इंक्विजिटिवनेस आ जाएगी कि व्हाई एंड हाउ दिस इज, कोई भी चीज़ है उससे व्हाई एंड हाउ पूछो, आप कैसे, क्यों हैं और कैसे है ये, देन यू विल बी एबल टू ग्रास्प द मैटर मोर लुसिडली। व्हाई एंड हाउ ऑलवेज यू कैरी विद यू। कोई भी क्वेश्चन आया, कहीं भी आया कि व्हाई इट इज सो, हाउ इट इज, ये बहुत डेली एक इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस बना लो कि जब भी पेपर वगैरह बना, डेली सुबह का कोई बर्निंग पॉइंट हो, मतलब बैंक से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, आप भले ही बैंक में या इंश्योरेंस के लिए जा रहे हो, लेकिन बैंक क्वेश्चन सर पूछा एक्चुअली जाएगा आपसे। बैंकिंग का भी कर रहा था प्रोफेशन, ऐसा नहीं कि बैंकिंग बैंकिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये बैंक और इंश्योरेंस आपस में इंटरेक्ट, हाँ क्योंकि बैंक भी बहुत चीज़ों के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता ही है, तो उसके ऊपर डिपेंड है ही है। बैंक के पास बैंक इंश्योरेंस भी है, बैंक भी सेलिंग करता है इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, सर। यस सर। यस सर। तो आपस में इंटरलिंक है पूरा इंश्योरेंस ऑलमोस्ट आपका, सभी बैंक अब बैंकिंग, इंश्योरेंस का अपना अलग खोल दिया है। किसी सब्सिडीज से खोल के टाई अप उससे होता है, कर- किसी का अपना खुद है, किसी का टाई अप है। या जैसे आप हिंदू पेपर पढ़ते हो, तो क्या आपके मन में सिविल सर्विसेज का भी रहा होगा, तभी आप हिंदू पढ़ते हो, मैं समझता हूँ। सर एक्चुअली मैं एडिटोरियल के लिए पढ़ता हूँ। किसके लिए? एडिटोरियल के लिए, एडिटोरियल के लिए पढ़ते हैं, इंग्लिश के लिए। अच्छा 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 और करंट अफेयर्स के लिए तो वीडियोस देख लेता हूँ। तो अच्छा, ठीक है, उतना नहीं पढ़ता। वंडरफुल। हिंदू नहीं, अच्छा तैयारी कर रहे हो, थोड़ा और मेहनत करो, हो क्लियर हो जाएगा। जाएगा। आएंगे आप, या बैंक में आएंगे, इंश्योरेंस में आएंगे, जरूर पक्का आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% कॉन्फिडेंट है हैं। ना। डू वेल। और ये चेहरे पे स्माइल रखा करो ना, टेंशन में और क्यों बीच रहते में हैं? क्यों चली जाती है? इतनी अच्छा स्माइल है तुम्हारी, देखो कितनी बढ़िया स्माइल अभी आ रही है हमारे को। टेंशन मत रखो, आपके देखो सर फेस आपका स्माइलिंग है। ओपन रहो, ये बोलो खुल के बोलो। आर्म्स है बोल ना, के बोलो, यहाँ पे हम आपस में आर्म्स आर्म्स को ओपन रखिए और बिल्कुल स्क्रीन मत करिए अपनी बॉडी को। वहाँ पे जैसे मिडिल में था तो उसमें क्या कॉन्फिडेंस कम लग रहा था, मतलब कैसा था? नहीं, रिप्लाई देते समय ना जैसे कि चेहरे पे हवाइयाँ नहीं होनी डरना चाहिए। नहीं, कंफर्टेबल रहिए। आप यहाँ से कुछ लेके ही जाओगे, ये सर कुछ- इसलिए कुछ है। लूज कुछ नहीं होना तुम्हारे को। कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ गए नहीं होने वाला है तुम्हारे अगर को। नहीं आता कुछ है ना, तो बोर्ड आपको मतलब Hint देता है। हिंट देता है क्या करना है, कैसे करना है, नहीं आता। जैसे बैठे हुए हो तो ये बटन ओपन करना है, हाँ, बैठते ये मैं कहने वाला था, अभी दोनों बटन ओपन करने हैं आपको। ओपन करके बैठना आप टाइट हो ना थोड़ा सा, तो बी वेरी कंफर्टेबल। ओके सर, एक्चुअली ये वाला थोड़ा दिक्कत कर रहा है।
और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो पूछने का तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको हाँ बता सकते हैं कि कैसे आपको, हमने अपना ऑब्जर्वेशन तो दे दिया आपको। तो सर मतलब कितना स्कोर हो सकता है मेरा? 100% होगा आपका। 100% रहेगा आपका। और आपका बढ़िया है, मतलब more than बढ़िया 80, है, कोई 80, ऐसा 85 नहीं से है, ज़्यादा आपको जाएगा। 100% क्योंकि सर वैकेंसी बहुत कम है, मैं तो वो हो गया था नहीं, नहीं, कोई बात नहीं यार, never think that way. If you- एक वैकेंसी तो भी आप हाँ, कैंडिडेट हो उसके आप लिए। ये बोलो कि अगर एक इतना वैकेंसी तो मेरे confidence लिए है होना वो। चाहिए, मेरे लिए बनाई है। माइंडसेट कि एक वैकेंसी हाँ, मेरे लिए है। मेरे लिए क्रिएट हुई है वो वो। तो खैर है सर, लेकिन फिर बस भी फिर भी कभी आना ही नहीं है मन में। अच्छा ठीक। बिल्कुल बिल्कुल 100% जाना, ये वैकेंसी तो मेरे लिए ही है। माइंडसेट बुक है, उसको पढ़िए आप, बस पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। दूसरों का अभी जब इंटरव्यू देने जाओ तो कभी भी लोग बाहर आते हैं, ये सर इंटरव्यू दे करके बाहर कैंडिडेट आएगा, उससे मत पूछो कि हाँ क्या हाँ, वो पूछा गया, सही। कैसे नहीं वो दिया कंफ्यूज गया। हो जाएगा। मुझे अभी जाओगे? उससे मुझे थोड़ा- अभी सोचना है कि ये जो वैकेंसी है ये मेले में, अगर अभी सोच ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं बनूंगा कैसे? बनूंगा ये तो नहीं नहीं, सोचना ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ले आओ। कॉन्फिडेंस इसीलिए वहाँ और डिस्टेबलाइज हो जाओगे। एक सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं कंफर्टेबल हिंदी के साथ हूँ और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, मतलब खराब नहीं है, लेकिन कभी कभार कहते कोई चीज़ समझानी होती है तो हिंदी में हिंदी में बोलो। बोलो, हिंदी में बिंदास बोलो। 100% हिंदी में बोलो। आप कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट कर दो हिंदी में। हाँ। और अपने कोई आप इंग्लिश से को next पूछता question ही आपका है, हिंदी हम में कैसे आएगा। समझेंगे आप इंग्लिश या हिंदी जानते हाँ, हो? हाँ। बिकॉज टाई अगर बांध के फर्स्ट क्लास है तो आई नो कि दैट Yes, sir. आर्टिस्ट कम से कम कई जगह जॉब भी किया है, हाँ। तो यू आर वेल वर्स विद द इंग्लिश। Yes. लेकिन जैसे आप हिंदी में रिप्लाई दोगे तो बोर्ड समझ जाएगा कि नहीं, यू आर कंफर्टेबल विद द इंग्लिश। मतलब एक यही फैक्टर है कि बीच अगर बीच में इंग्लिश ही बोलो। हाँ इंग्लिश और कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना, एक जगह नहीं होता है तो ये ना, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये आपके लिए काबिल नहीं थी पोस्ट, आपके लिए इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, Be उसके लिए positive. तैयारी करना है। बी पॉजिटिव ऑल द टाइम ना। यस सर बात समझाते समय अगर मान लो इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं आप, नहीं आ रहा, उसको हिंदी में तुरंत बोलो, आप समझा दो उससे हिंदी में। यस अच्छा बल लास्ट थिंग, जैसे आप बैठे हो चेयर पे, Yes. तो आपने कहा ये हैंडल मुझे थोड़ा सा कंफर्ट, तो इसको क्या बोलेंगे? यू आर सिटिंग ऑन द चेयर और इन द चेयर इस सिचुएशन में? सर ऑन द चेयर। इन द चेयर, जब हैंडल होते हैं तो इन द चेयर होता है। अच्छा हाँ सर, तो यू वांट ऑन द चेयर ना, यस ऑन द चेयर, तो ये एक डिफरेंस होता है दोनों में। अच्छा यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट, डू वेल, अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सर।